जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का परीक्षा वाटिका एजुकेशन में। बीपीएससी एडीओ पहले पेपर का ये चौथा मॉक टेस्ट है। इससे पहले 3 टेस्ट इसी यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर दिया गया, उस टेस्ट को आप लोग जाकर के देख सकते हैं। एडीओ का जो पहला पेपर है, इसका 10 टेस्ट किरण पब्लिकेशन का कराया गया है इस यूट्यूब चैनल पर। उसका प्लेलिस्ट है, जारी कर दिया गया है, वहां जाकर के 10 टेस्ट लगा लीजिए। बाकी ये टेस्ट चल रहा है, इसमें 3 टेस्ट हुआ, आज चौथा टेस्ट है। इस वीडियो को स्टार्ट करेंगे। इससे पहले आप लोग जो नए हैं, पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हो, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि नए वीडियो टेस्ट सीरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगा। सेशन को लाइक कीजिए और शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड के बीच। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रश्न। जैसा कि आप सभी को पता है कि एडीओ के पहले पेपर में 2 पार्ट है। पहले पार्ट में अंग्रेजी से प्रश्न पूछे जाते हैं 30 और दूसरे पार्ट में हिंदी से 70 प्रश्न। चलिए, कंप्रिहेंशन दिया गया है और कहा जा रहा है कि केयरफुली इसको रीड कीजिए। स्टार्ट करें। ड्यूरिंग द डिकेड आफ्टर लिबरलाइजेशन, फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्रीज took giant step in the export arena. This era has seen a dynamic shift from sustained production to commercial production. The era under floriculture production in India is around to 49,000 hectares with a production of 1659,000 tons loose flowers and 484,000 tons cut flowers. Floriculture is now commercially cultivated in several states with Tamil Nadu 20%, Karnataka 30.5%, in West Bengal 12.2%, having gone ahead of other producing states like Madhya Pradesh, Mizoram, Gujarat, Andhra Pradesh, Odisha, Jharkhand, Haryana, Assam and Chhattisgarh. Government of India has identified floriculture as a sunrise industry and accorded in 100% export oriented status. Owing to a steady increase in the demand of flowers, floriculture has become one of the important commercial trades in agriculture. Hence, commercial floriculture has emerged as a high-tech activity taking place under controlled climatic conditions inside the greenhouse. Floriculture in India is being viewed as a high-growth industry. Commercial floriculture is being important from the export angle. The liberalization of industrial and trade policies paved the way of development of export-oriented production of cut flowers. The new seed policy had already made it feasible to import planting material of international varieties. It has been found the commercial floriculture has higher potential per unit area than most of the field crops and is therefore as a lucrative business. Indian floriculture industry has been shifting from traditional flowers to cut flowers for export purposes. The liberalized economy has given an impetus to the Indian entrepreneurs for establishing export-oriented floriculture unit under controlled climatic conditions. Indian floriculture industries comprises to flowers such as rose, tuberose, glads, anthurium, carnations, marigold, etc. India's total export of floriculture was Rs 571.38 crores in $80.94 million in 2018-19. The major importing countries were United States, Netherlands, United Kingdom, Germany, United Arab Emirates. There are more than 300 export-oriented units in India. More than 50% of the floriculture units are based in Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu with a technical collaboration from foreign companies, and the Indian floriculture industry is poised to increase its share in world trade. साथियों, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो इस नंबर पर आप लोग मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, इसका पीडीएफ मिल जाएगा, या फिर आप लोग परीक्षा वाटिका टेलीग्राम चैनल पर भी जाकर देख सकते हैं। परीक्षा वाटिका ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ भी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो व्हाट्सएप पर आपको क्विक रिस्पॉन्स के तहत पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए, ये था हमारा पूरा पैसेज। अब यहाँ पर इसी से रिलेटेड प्रश्न दिया गया है। मैंने पैसेज पढ़ के सुनाया, आप लोग का टाइम बचा दिया। यहाँ पर क्या है, द मेन थीम ऑफ द पैसेज इज, क्या होगा मेन थीम? अकॉर्डिंग टू द पैसेज, द मेन थीम ऑफ द पैसेज इज राइज ऑफ फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्री इन इंडिया। ऑप्शन सी द राइट आंसर, द राइज ऑफ फ्लोरिकल्चर इंडस्ट्रीज इन इंडिया। The area under floriculture production in India is about, the right answer is according to passage option C, 249,000 hectares. Which of the following statement is not true according to the passage? Read carefully. The liberalization of industrial and trade policies by the government gave a major fillip to the export
of Indian floriculture products. Option B is the correct answer. Okay, more than 50% of floriculture units are based in Karnataka. Okay, extremely sorry. The right answer is option A. India's export in floriculture was 571.38 million in 2018-19. Okay. Next question. What gave a major fillip of the export of Indian floriculture products? Right answer is option B. The liberalization of industrial and trade policies by the government. Next. Which three states are major cultivators of floriculture products? Correct answer is option B. Tamil Nadu, Karnataka and West Bengal. Select the alternative that will improve the underlined part of the sentence. In case there is no improvement, select no improvement. No improvement से रिलेटेड ना बहुत सारे प्रश्न की पब्लिकेशन में हुआ था, उस 10 टेस्ट को आप लोग जाकर देखिए, ठीक है, उसका प्लेलिस्ट जारी कर दिया गया है, पढ़िए पूरा स्टेटमेंट. ऑल स्टूडेंट्स हैज अ ड्रीम टू स्टडी इन अ गुड यूनिवर्सिटी. ऑप्शंस दिया गया है यहां पर, देख लीजिए. राइट आंसर हो जाएगा हैव ए ड्रीम. हैव ए ड्रीम. यहां पर जो हैव ए ड्रीम है ना, पहले सबसे पहले ये चीज देखिए, ऑल स्टूडेंट्स. ऑल स्टूडेंट्स ये ना प्लूरल सब्जेक्ट है. क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट है. यहां पर क्या यूज होगा? तो प्लूरल वर्ब का यूज होगा, ठीक है. तो हैव का यूज होगा ना, इसलिए हैव अ ड्रीम ये होना चाहिए. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक. स्टेटमेंट है आई हु डैश योर फ्रेंड एंड वेल विशर्स शुड हैव बीन इन्फॉर्म्ड अबाउट योर डिसीजन. द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, एम इन द ब्लैंक प्लेस. M. Identify the segment in the sentence which contains a grammatical error. इस तरह के प्रश्न बार बार आए हैं, 3 सेट में भी आया और 10 टेस्ट में बहुत सारे प्रश्न किए गए हैं. I remember to meet her at a conference in Delhi last year. Correct answer is option E. To meet her. What? To meet her. Last year यहाँ ना जेरंड है, ठीक है. क्या है? जेरंड है. और इसका यूज जो होता है ना कन्वे करने के लिए होता है फ्यूचर में, इन infinitive used, therefore for last 4 year in past meeting her gerund will be used. Okay, to meet her. Option A is the right answer. Select the most appropriate option to fill in the blanks. A stories of dolphins saving human lives dash throughout history. Correct answer इसका हो जाएगा option B, have been told. ठीक है, have been told is suitable है because have बीन प्लस वर्ब 3 का यूज हो रहा है, ये पैसिव वॉइस के लिए, ठीक है. टोल्ड. सेलेक्ट द सेगमेंट. यहां पर क्या ग्रामेटिकल एरर कह रहा है, पढ़िए इसको. दे हैड टू वेट फॉर द लगेजेस टू बी पुट इनटू द कैब बिफोर दे देमसेल्फ गॉट इनटू इट. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, फॉर द लगेजेस. ये यूज होगा क्योंकि यहां पर प्लूरल है. प्लूरल है, लगेजेस क्या है? ये प्लूरल है, ठीक है. तो यहां पर इसके अकॉर्डिंग एस या ईएस इन्फॉर्म्ड होगा. तो करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? दे हैड टू वेट फॉर द लगेज, नॉट एस, टू बी पुट द कैब इनटू द कैब बिफोर दे देमसेल्फ गॉट इनटू इट. ठीक है, एस नहीं होगा, इसलिए ये यहां पर गलत है और एरर पूछा जा रहा, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो गया. Find the part of the given sentence that has an error in it. If there is no error, choose no error. पढ़िए सेंटेंस है, can you please pass me that glittery pen black. Correct answer is option B, glittery plain black. Question mark. ये जो है ना glittery black pen will be used because the correct sequence in adjective black. ठीक है, black क्या है? Adjective, क्योंकि विशेषता बता रहा ना, ठीक है. नाउन पेन हो गया, नाउन. क्लियर. तो ग्लिटरी ब्लैक पेन, कैन यू पास मी द दैट ग्लिटरी पेन ब्लैक पेन. ठीक है, यहां क्या होगा? ब्लैक पेन. ये इसका सही जवाब हो जाएगा. राइट स्टेटमेंट यहां से यहां तक. और ये ब्लैक पेन ब्लैक नहीं होगा, ब्लैक पेन होगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. Question number 12. In the given sentence, identify the segment that contains a grammatical error. There is a few water in the wall on the table. Correct answer is option B, of few water. Select the most appropriate option. यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? Underline segment में substitute करना है. This is the challenge
task I have been encountered. Correct answer is option C, most challenging. Most challenging have been used to qualify the noun task and superlative degree. What? Task, that is superlative degree. Okay, and superlative degree is most, will be used after article the. The right answer is option C, most challenging. Select the most appropriate option to fill in the blank. The ship sailed smoothly owing to dash winds. The correct answer is option C, favorable. क्या है? Favorable right answer हो जाएगा. Favorable would be appropriate because the ship is sailed to move easily in favor of the direction due to the wind. Meaning of other options, जैसे कि ये boisterous है. Boisterous क्या होता है? Noisy and lacking in restraint and discipline, unruly. यहाँ पर tempestuous ये पूछा जाए ये किस संदर्भ में होता है? Stormy. ओके, चलिए आगे बढ़े. सिनोनिम पूछा जा रहा है. डेसिमेट का सिनोनिम क्या होगा? डेसिमेट दैट मींस डिस्ट्रॉय. डिस्ट्रॉय, इन द मीनिंग ऑफ डिस्ट्रॉय, द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, wreck. एनिहिलेट, इसका अगर जो आपको कभी पूछ दिया जाए सिनोनिम क्या होगा? एनिहिलेट. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, इसका भी मेलोडी. मेलोडी का सिनोनिम क्या होगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा इलनेस, ऑप्शन सी. यहां पर नो सब्स्टिट्यूशन चूज करना है. राहुल थिंक्स दैट दिस इज क्वाइट द चीप रेस्टोरेंट. अंडरलाइन पार्ट है क्वाइट द चीप रेस्टोरेंट. राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, क्वाइट चीप. व्हाट? क्वाइट चीप. यहां पर आर्टिकल ए का यूज होगा, तो राहुल थिंक्स दैट दिस इज क्वाइट अ चीप रेस्टोरेंट, नॉट द. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 18. फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द सेगमेंट इन द सेंटेंस विच कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर. पढ़िए सेंटेंस. हैविंग वर्कड फॉर द होल डे यू शैल हैव टेकन सम रेस्ट एंड बिगन अगेन. यहां पर जो करेक्ट आंसर इसका बन के आएगा, यू शुड हैव टेकन. व्हाट? यू शुड हैव टेकन. ऑप्शन सी इज द राइट आंसर. Choose the word that is opposite in meaning to the given word. Opposite एंटोनिम पूछा था, डोज का एंटोनिम क्या होगा? तो डोज का एंटोनिम हो जाएगा wake. What? Wake. Wake, to sleep lightly for a short time is wake. ठीक है. Cold, that means frigid. Snooze, wink. ये सभी इसके अपोजिट हो जाएंगे. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम. पेरिलस, इसका एंटोनिम क्या होगा? सेफ. पेरिलस मतलब होता है अनसेफ. ठीक है. यहां पर क्या है? ग्रामेटिकल एरर चूज करने कहा जा रहा. द सी अराइव्ड एक पार्ट है, दूसरा एट, तीसरा मंडे मॉर्निंग टू अटेंड द मैरिज. 4 पार्ट दिए गए, 5 पार्ट दिए गए हैं ना. 5 पार्ट में से ये राइट आंसर होगा मोर देन वन ऑफ द एबव. क्यों ये मोर देन वन ऑफ द एबव होगा? आप लोग बताओ. क्योंकि ऑन विल बी यूज्ड बिकॉज द प्रीपोजिशन ऑन इज यूज्ड बिफोर एंड डे और डेट. एग्जांपल, ऑन मंडे कहते हैं ना, ऑन मंडे, ऑन ट्यूसडे. ठीक है. यहां पर ना इसका पहले यूज होगा. किसके? प्रीपोजिशन से पहले ऑन का यूज होगा. इसीलिए जो यहां पर राइट सेंटेंस बनना चाहिए, सी अराइव्ड ऑन मंडे. ठीक है, नॉट एट. ऑन मंडे मॉर्निंग टू अटेंड द मैरिज. ठीक है. चलिए एक से अधिक हो जाएंगे. करेक्ट आंसर बताओ आप लोग क्या होगा? एट होगा. ठीक है, क्योंकि एक ही एरर आया है ना. एट के जगह क्या होगा? ऑन होगा. चलो अगला प्रश्न है. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स. टिकट्स फॉर द इवेंट आर अवेलेबल डैश द डोर. There is no advance booking. The correct answer is at. In the blank place, fill out at. Identify the segment in the sentence which contains the grammatical error. If there is no error, select no error. पढ़िए इसको. Susmita's youngest sister is not only beautiful but even intelligent also. Correct answer is option A. But even intelligent also.
is suitable because not only but also is used a correlative conjunction. Therefore, words of the same part of a speech, adjective, beautiful and intelligent are added to it. The correct sentence क्या होगा? Susmita's youngest sister is not only beautiful but also intelligent. Not even. ठीक है, क्या होगा? Also intelligent. That is the correct sentence. Next question बढ़े, क्वेश्चन नंबर 24 देखिए. फिल इन द ब्लैंक विद द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड. यहां पर दिया गया है, सेंटेंस पढ़िए. वी कैन नॉट डिले द प्रोजेक्ट डैश इट इज अर्जेंट. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बिकॉज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है ये, और इसी का यूज होगा. तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? वी कैन नॉट डिले द प्रोजेक्ट बिकॉज इट इज अर्जेंट. रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड चूज करने को कहा जा रहा है. सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड वर्ड. यहां पर कौन सा रॉन्गली स्पेल्ड है? ये दिख रहा है एडवर्जन, एवर्जन होना चाहिए, एवर्जन. ये गलत दिया गया है. इसका कैसे लिखा था पता है आपको? बताओ आप लोग. एवर्जन होता है, नॉट टी होता है, एस होगा. ठीक है. सेलेक्ट द ऑप्शन द एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस पैसिव वॉइस एसेट डिनाइड. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, लेट द एक्सेस टू बी डिनाइड. सेलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फ्रॉम द गिवन सेंटेंस. सेंटेंस ये दिया गया. शांति आस्क्ड मी व्हाई डिड यू कीप दिस स्मार्टफोन इन द विन. यहां जो है ना, ये चीज आपको एक क्लियर होना चाहिए. तो रिपोर्टेड स्पीच क्या है? WH टाइप है. अगर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्या है? WH टाइप का रिपोर्टेड हुआ है, तो ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस होगा. इसको बनाने के लिए क्या होता है कि क्वेश्चन वर्ड वाई टू बी यूज्ड एज अ कंजक्शन इन प्लेस ऑफ कोमा एंड इन्वर्टेड कोमा. दूसरा क्या करेंगे? रिपोर्टेड वर्ब सेड टू बी इज टू बी यूज्ड चेंज इनटू आस्क्ड. थर्ड, according to the narration rule, tense and pronoun will be changed. Okay, a reported speech is to be converted from interrogative to assertive sentence. ये होता है इसका रूल, आप सभी को पता होगा. तो करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? तो शांति आस्क्ड मी व्हाई आई, यहां पर चेंज कीजिए, क्या होगा? शांति आस्क्ड मी व्हाई आई हैड केप्ट दैट स्मार्टफोन इन द बिन. ए रूल के अकॉर्डिंग ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा. ठीक है. स्पेस नहीं था, नहीं तो मैं लिख देता सारा रूल. यहां पर आप लोग सुन के लिख लेना अगर कॉपी पेन लेके बैठे हो. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम, कम, रेन और साइन. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस. सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन, एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग दैट एटमॉस्फेरिक प्रेशर. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, बैरोमीटर. दैट कॉल्स बैरोमीटर. थर्मोमीटर क्या होता है? एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द एयर ए पर्सन्स बॉडी. ठीक है. अल्टीमीटर क्या होता है? तो ये होता है स्पेशली इन एयरक्राफ्ट, जो हवाई जहाज होते हैं ना समुद्र के ऊपर, तो उसका हवा मापा जाता है, उसका हाइट मापा जाता है अल्टीमीटर से. चलिए, आखिरी प्रश्न है पहले पार्ट का अंग्रेजी का, उसके बाद दूसरे पार्ट में हिंदी की तरफ बढ़ेंगे. सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड फॉर द ग्रुप ऑफ वर्ड्स. ये दिया गया है, वन होज हॉबी इज स्टाम्प कलेक्शन. द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, फिलेटलिस्ट. फिलेटलिस्ट इज द राइट आंसर. यहां पर क्या है? फोनोलॉजिस्ट क्या होता है? बताओ आप लोग. फोनोलॉजिस्ट आपको बताना है क्या होगा. उसके बाद है फिलेंथ्रोपिस्ट. ये क्या होता है? अल्ट्रिस्ट होता है. ठीक है, अल्ट्रिस्ट होता है. और ये होता है ए स्पेशल ऑफ फोनोलॉजी. व्हाट? फोनोलॉजी स्पेशलिस्ट, दैट इज फोनोलॉजिस्ट. ओके, चलिए बढ़ते आगे. आपको पता है दूसरे पार्ट में हिंदी से प्रश्न होंगे 70 प्रश्न. चलिए, पहला प्रश्न है और 31वां टोटल का प्रश्न. संग्रहालय का संधि विच्छेद क्या होगा? वेरी इजी, सम जोड़ ग्रह जोड़ आलेप. अत्युक्ति शब्द में संधि क्या है?
तो ये हो जाएगा यण संधि, अति जोड़ युक्ति। इसका ना जितना भी है ना डिटेल्स में जो ग्रामर है आपको, आप ना वो किरण वाला 10 टेस्ट जाके करो। उसमें ना क्या किया हूं मैं कि जो भी जैसे अतियुक्ति शब्द में संधि है तो यन संधि, तो यन संधि का क्या परिभाषा है, ये कैसे होता है, पूरा डिटेल्स में बताया। अगर दीर्घ आया है तो दीर्घ के बारे में, गुण आया है तो गुण के बारे में, सारा का सारा मैं 10 टेस्ट में आपको सारा टॉपिक ही क्लियर कर दिया हूं, ग्रामर का, हिंदी ग्रामर का और अंग्रेजी का, दोनों का ऑलमोस्ट। अब इस सारे टेस्ट में आपको सिर्फ टेस्ट लगाना है। अगर आपको विथ डिस्कशन चाहिए अच्छे से पूरा, तो वो 10 टेस्ट आप लोग को करना अनिवार्य है, वो जाकर के आप लोग कर लो। इसमें यन संधि होगा। संधि के कितने भेद होते हैं? सही जवाब है 3 भेद। ठीक है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। पेट की अग्नि के लिए शुद्ध शब्द कौन सा होगा, बताओ आप लोग। तो पेट की अग्नि के लिए जठराग्नि। ठीक, दावाग्नि किसके लिए होता है? तो दावाग्नि होता है जंगल की आग। कहां की? जंगल की। बड़वाग्नि किसका होता है? समुद्र की आग। समुद्र की आग को बड़वाग्नि कहते हैं। और जठराग्नि पेट की अग्नि, पेट की आग, जो भूख लगना कहते हैं। चिड़ या चीड़ शब्द का अर्थ है, हर सही वाला जो चिड़ है इसका मतलब होता है पुराना। ठीक है, पुराना होता है। और चीड़ का मतलब होता है कपड़ा, दीर्घ ई वाला मात्रा जो है उसका मतलब होता है कपड़ा। विकल्प सी इसका सही जवाब हो गया। स्थिर और पृथ्वी के युग्म की कौन सी जोड़ी सही है? स्थिर और पृथ्वी, तो जो अचल और अचला है इसी संबंधित है, अचल और अचला। ठीक है, अचल का अर्थ होता है स्थिर, अचल यानी स्थिर, और पृथ्वी मतलब अचला, अचला का अर्थ होता है पृथ्वी। चलो आगे बढ़े, इसका क्वेश्चन इधर ही था। अनेकार्थी शब्द अब्ज के गलत विकल्प का चयन कीजिए। अब्ज का कौन सा यहां पर गलत ऑप्शन दिया गया है, बताओ आप लोग कौन सा गलत है अब्ज का। तो अब्ज का जो समानार्थी हो जाएगा, ये हो जाएगा चंद्रमा हो जाएगा, शंख हो जाएगा। तो एक मेघ ही बचा ना, मेघ नहीं होगा। ठीक है, तो यही राइट आंसर, नहीं पूछ रहा था ना, तो ये राइट आंसर हो गया मेघ। क्लियर है? दिए गए विकल्प में से अपेक्षा का अर्थ कौन सा है? सही जवाब है अभिलाषा। ठीक है, और अगर उपेक्षा पूछा जाए, उपेक्षा, तो उपेक्षा यानी अंधकार से संबंधित है। मरकट का पर्यायवाची क्या होगा, बताओ आप लोग। तो कपि, बानर। आप लोग अगर रामायण देखे होंगे तो उसमें रावण बोलता भी है कि मरकट चला गया, यानी हनुमान के बारे में बोलते हैं, हनुमान जी के बारे में बोलते हैं। तो मरकट का अर्थ होता है बंदर। निम्नलिखित में से कौन शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है? सही जवाब है विकल्प सी जात रूप। जात रूप जो है यह स्वर्ण का पर्यायवाची है। ठीक है, आविर्भाव का समानार्थी क्या होगा? तो यह हो जाएगा अवतरण। निर्माण का विलोम, वेरी इजी, क्या होगा? ध्वंस। निर्माण मतलब स्टार्ट, जिसको कहते हैं जैसे जन्म लेना एक संदर्भ में, ध्वंस मतलब विनाश हो जाना, ध्वंस का मतलब साफ खत्म हो जाना। दिए गए विकल्पों में प्रचुर का विलोम शब्द कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा अल्प। दीर्घ ई प्रत्यय किस शब्द में नहीं है, बताओ आप लोग। ये चमेली में नहीं है दीर्घ ई। ठीक है, और ये जो है ना जैसे तेली हो गया, माली हो गया, इसमें ई प्रत्यय का यूज हुआ है, इसमें ई हुआ है। चमेली में जो है नहीं हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। प्रत्येक शब्द में उपसर्ग है, इसमें से कौन कौन सा उपसर्ग है बताओ। सबसे पहला तो प्रति है, ये सारे नहीं होंगे, क्योंकि जो शब्दों के आदि में पहले जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, विशेषता लाते हैं, उसको उपसर्ग कहा जाता है। आपको पता है, जैसे प्रति में अगर कूल लगा देंगे तो क्या हो जाएगा? प्रतिकूल हो जाएगा। इसी तरह अगर प्रति में अक्ष लगा देंगे क्या होगा? प्रत्यक्ष। क्लियर है? चलो, अभ्यागत शब्द में उपसर्ग क्या होगा? अभ्यागत में उपसर्ग पूछा जा रहा है, सही जवाब हो जाएगा इसका विकल्प अभि, अभि उपसर्ग है। इसी तरह अगर अभ्युदय पूछा जाता है, इसमें भी इसी तरह, ये सारे ना इंपॉर्टेंट है। अभ्युदय ये पूछा जा सकता है, हो सकता है। ढीठ शब्द का तत्सम है, ढीठ जाने देसी भाषा है, और इसका तत्सम दृष्ट होगा, दृष्ट होना चाहिए। तो यहां पर दृष्ट दिया गया, ये भी नहीं होगा, दृष्ट होना चाहिए, ये दृष्ट। ठीक है, ये दृष्ट होगा इसका। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव है? सही जवाब है कोयल।
अट्टालिका का तद्भव रूप क्या होगा? तो अट्टालिका जो है इसका तद्भव रूप अटारी होना चाहिए, अटारी। यहां पर नहीं दिया गया, कोई ऑप्शन नहीं दिया, कोई ऑप्शन सही नहीं, विकल्प ई इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से कौन सा शब्द योग रूढ़ शब्दों की श्रेणी में आता है? सही जवाब हो जाएगा, यह है विकल्प सी दशानन। दशानन योग रूढ़ की श्रेणी में आता है, क्योंकि बहुब्रीहि समास के सभी उदाहरण जो है, जितने भी, कौन सा समास है ये? बहुब्रीहि समास। और जितना भी आएगा ना बहुब्रीहि समास का, वो योग रूढ़ होगा। राम सीता से सुंदर है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? सही जवाब हो जाएगा विकल्प बी अपादान कारक। क्यों? सीता से, अपादान से, आप लोग को पता होगा ना, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए अपादान से। सभी चिट्ठियां डाक से भेजी गई, इसमें कर्ता है, क्या होगा कर्ता? तो कर्ता जो है ना, एक कारक का काम कर रहा है, तो भेजी, यहां पर कारक क्या है? डाक है, डाक क्या हो गया? कारक हो गया, ठीक। भेजा गया, ये क्या है? क्रिया हो गया। सभी विशेषण तथा चिट्ठियां क्या हो गया? सभी जो हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्ता हो गया, और ये स्त्रीलिंग संदर्भ में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बताओ आप लोग? स्त्रीलिंग शब्द है, तो सही जवाब इसका होना चाहिए सभी विशेषण और चिट्ठियां, ये कर्ता हो जाएंगे। सॉरी, सभी जो है ना विशेषण होगा, सभी विशेषण हो गया, ठीक है। और ये जो है चिट्ठियां जो है, चिट्ठियां जो है ये हो जाएगा कर्ता, ठीक है। तो चिट्ठियां नहीं दिया गया ना ऑप्शन में, चिट्ठियां नहीं दिया गया, तो ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा, ठीक है। सभी क्या हो गया? सभी हो गया विशेषण, चिट्ठियां हो जाएगा कर्ता, जो कर्ता पूछा जा रहा है यहां पर, डाक हो जाएगा कारक, और भेजा गया, भेजना हो जाएगा क्रिया। चलो आगे बढ़े। जो इंद्र पर विजय प्राप्त कर चुका हो, इसको क्या कहा जाएगा? इंद्रजीत। निम्नलिखित में से कौन कर्तृवाच्य नहीं दर्शाता है? सही जवाब है विनय से चला नहीं जाता, ठीक है। विनय से नहीं चला जाता, ये भाव जो है ना भाववाच्य को दर्शाता है, ये जो है ना भाववाच्य है, ये वाला। बाकी ये सारे जो दोनों है ये कर्तृवाच्य। कौन सा कारक आसन्न भूतकाल में है? आसन्न भूतकाल, तो आसन्न भूतकाल क्या होता है कि इस काल में क्रिया के व्यापार की समाप्ति की निकटता स्पष्ट होती है। विकल्प में अगर कहा जाए मोहन आया, तो क्या हो गया? मोहन आ गया। जैसे मैंने आम खाया, तो ए संदर्भ, ये विकल्प सी इसका सही जवाब होगा। किस वाक्य में एक वचन का प्रयोग हुआ है? वेरी इजी, लड़के ने लड़के को मारा, एक वचन। दिए गए विकल्पों में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा अन्नसन, क्या होगा? अननास, अनानास हो जाएगा, ये स्त्रीलिंग नहीं है। और सारे जो है ये सारे स्त्रीलिंग है, चिल्का झील सब्जी। धावक तेज गति से दौड़ते हैं, वाक्य में तेज गति क्रिया विशेषण का कौन सा भेद है? तो ये हो जाएगा परिमाणवाचक। वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है, वाक्य में अव्यय पद कौन सा होगा? यहाँ अव्यय पद पूछा जा रहा है, यह होगा हमेशा। कौन सा संयुक्त क्रिया का भेद नहीं है? सही जवाब विकल्प बी नाम बोधक। बालक इस पुस्तकालय में पढ़ रहा है, वाक्य में डैश क्रिया है, इसमें कौन सा क्रिया होगा? तो इसमें होना चाहिए सकर्मक क्रिया, ठीक है, सकर्मक क्रिया होगा, क्योंकि वह क्रिया जिसको करने के लिए कर्म की आवश्यकता होती है, जैसे कि इस क्रिया में असर सीधा कर्म पर पड़ रहा है। तो ये जो है, जैसे राम फल खाता है, अंकित टीवी देख रहा है, ये पढ़ना जैसे हो गया। तो क्रिया का संपादन बिना कर्म कर हो नहीं सकता है, पुस्तक इसके बिना, या कोई पत्र पढ़ रहेगा, तो पढ़ना सकर्मक क्रिया होगा, ठीक है, सकर्मक। यहाँ ऑप्शन में दिया ही नहीं गया सकर्मक, सकर्मक, तो ये ऑप्शन ई इसका सही जवाब होगा। सतीश चंचल बालक है, इस वाक्य में चंचल शब्द है, चंचल क्या हो जाएगा? गुणवाचक विशेषण है, इसकी विशेषता, इसके गुण को बताया जा रहा है सतीश को। और विशेषण के कितने भेद? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण, ये 4 प्रकार होते हैं विशेषण के, आप लोग याद करो। 10 टेस्ट देख लो, अगर जो देखे हो उसको याद होगा। निम्नलिखित में विशेषण पद क्या है? ये हो जाएगा आयत लोचना। यहाँ पर जो करेगा सो भरेगा, जो रेखांकित है, रेखांकित शब्द जो है, ये जो है क्या है, ये पूछा जा रहा है। ये संबंधवाचक सर्वनाम है, वेरी इजी। कौन सा? संबंधवाचक सर्वनाम। सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं बताओ? 6 भेद। कौन कौन से? बताया हूं, फिर से रिपीट कराता हूं, लिखूंगा नहीं, आप लोग जाकर के देखो वो टेस्ट। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम,
निजवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम, ये 6 भेद होते हैं। अचूक विशेषण के साथ प्रयुक्त संज्ञा है, ये कौन सा होगा? निशाना। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प बी, 3 भेद होते हैं। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें किसकी वर्तनी शुद्ध होगी? आभ्यंतरिक, यह जो है ना आभ्यंतरिक, अत्यधिक, निरोग, ये सारे के सारे गलत ही दिए गए हैं। ये क्या होता है? आभ्यंतरिक होता है, यांतरिक नहीं होता है, ये होता है आभ्यंतरिक। ये थोड़ा थोड़ा ना ध्यान देना है आपको, ठीक है? इस तरह से लिखाएगा, अत्यधिक नहीं हो, या नहीं होता है, यहाँ पर अत्यधिक होता है ना, छोटा छोटा चीज ध्यान देना। निरोग, निरोग इस तरह से नहीं लिखा था, निरोग इस तरह से लिखा, दीर्घ ई की मात्रा होती। तो शुद्ध वर्तनी तो किसी का हुआ ही नहीं, सारे के सारे तो गलत ही दिए गए हैं। तो ये हो जाएगा, इसमें क्या था? हर सी की मात्रा था, उपर्युक्त में से कोई नहीं, कोई भी शुद्ध है ही नहीं इसमें, विकल्प ई सही जवाब हो गया। एक की वर्तनी शुद्ध है, इसमें बोला जा रहा है कि एक की वर्तनी शुद्ध है, आप खोजो, ये अनानास हो जाएगा, ठीक है? अनानास इस तरह से लिखाता है, और खिवैया नहीं होता है, ये होता है खेवैया। शुद्ध क्या होगा? खेवैया होता है। न्यौछावर, ये होता है न्यौछावर, ये करेक्ट होगा, ठीक है? अनानास सही है। किसी अक्षर या शब्द पर विशेष बल देने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा इकहरा उद्धरण का, इकहरा उद्धरण का। जो चाहे करो डैश, बस हमें तंग ना करो। वाक्य के बीच में जो खाली स्थान है, इसमें कौन सा विराम चिन्ह लगेगा? तो इसमें कौन सा लगेगा? अर्धविराम लगेगा, ठीक है? जो चाहे करो, अर्धविराम इस तरह से होता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? सही जवाब है 25 वर्ण है। कहां से कहां तक? क से लेकर के म तक। ये 25 जो है मुख के विभिन्न भाग, जैसे कंठ हो गया, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ, जिह्वा, इस सब के स्पर्श से बोला जाता है। कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, ये पूरा हो गया। निम्न में से संयुक्त व्यंजन कौन सा नहीं है? बताओ आप लोग। यह जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, अंतःस्थ व्यंजन है। ये कौन सा है? अंतःस्थ व्यंजन है। चलिए आगे बढ़े। स्वरों का उच्चारण कैसे होता है? तो बिना किसी की सहायता से होता है और सभी स्वतंत्र होते हैं। व्यंजन वर्ण का उच्चारण जो होगा स्वर की सहायता से ही होगा। तो ये जो होता है ना डिपेंडेंट नहीं होता है। व्यंजन जो होता है विकलांग होता है, ठीक है? इस स्वर की सहायता के बिना नहीं चल सकता, बिना बैसाखी। तो बैसाखी इसका स्वर हो जाता है, इसका व्यंजन का। तो इसका सही जवाब क्या होगा? व्यंजन की सहायता से होता नहीं, अनुस्वार की सहायता से नहीं, ये स्वतंत्र होता है ना, स्वतंत्र उच्चारण होता है इसका, स्वतंत्र उच्चारण। विकल्प ही सही जवाब हो गया, कोई आंसर दिया ही नहीं गया ऑप्शन सही। अमृता प्रीतम किस भाषा की साहित्यकार है? इसका सही जवाब है विकल्प बी, पंजाबी भाषा की। ठेठ हिंदी का ठाठ किसकी रचना है? यह रचना किया गया अयोध्या सिंह उपाध्याय के द्वारा। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? तो भूषण है, और ये वीर रस के कवि हैं। कभी पूछ दिया जाए, वीर रस के कवि हैं, ठीक है ये। और चित्रकूट के सालंकी राजा रुद्र ने इन्हें कवि भूषण क्या उपाधि दी थी? कौन सा? चित्रकूट का राजा सोलंकी, सोलंकी वंश के राजा, उनका क्या नाम था? रुद्र। उन्होंने इनको कहा था क्या? कवि भूषण, क्योंकि पोएट थे, इनका नाम रखा भूषण। निम्नलिखित में से किस मुसलमान कवि की रचना प्रेम चिनगारी है? प्रेम चिनगारी किसकी रचना है? ये नजफ अली का है, नजफ अली, इनकी रचना है। यहाँ पर कोई ऑप्शन दिया ही नहीं गया सही, विकल्प ई सही जवाब होगा। और यहाँ पर जायसी जो है, जायसी, इसके द्वारा पद्मावत लिखा गया था, पद्मावत, जो कि इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। नूर मोहम्मद, इसने इंद्रावती लिखा था, ठीक है। और शेख नबी के द्वारा जो है ज्ञानदीप की रचना की गई थी। ये भी एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है। डैश मैथिली के सुप्रसिद्ध कवि, सही जवाब है विद्यापति। और पदावली की रचना मैथिली भाषा में की इन्होंने, जिसके कारण मैथिल कोकिल भी कहा जाता है इनको, मैथिल कोकिल के नाम से इनको जाना जाता है। एक भी पॉइंट छोड़ेंगे नहीं आपको, एक भी एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए ऑप्शन,
सारा क्वेश्चन सही करके आना है। 935 में से आपका एक सीट कंफर्म है। दिए गए गद्यांश के आधार पर प्रश्नों का उत्तर चुनिए। पढ़िए इसको, गद्यांश को। शिक्षा मनुष्य को मस्तिष्क और शरीर का उचित तालमेल करना सिखाती है। वह शिक्षा क्या जो मानव को पाठ्य पुस्तकों के ज्ञान के अतिरिक्त कुछ गंभीर चिंतन न दे। यदि हमारी शिक्षा सुसंस्कृत, सभ्य, सच्चरित्र एवं अच्छे नागरिक नहीं बना सकती तो उससे क्या लाभ। सहृदय, सच्चा परंतु अनपढ़ मजदूर उस स्नातक से कहीं अच्छा है जो निर्दय और चरित्रहीन है। संसार के सभी वैभव और सुख साधन भी मनुष्य को तब तक सुखी नहीं बना सकते जब तक कि मनुष्य को आत्मिक ज्ञान ना हो। हमारे कुछ अधिकार और कर्तव्य भी हैं। शिक्षित व्यक्ति को कर्तव्यों का उतना ही ध्यान रखना चाहिए जितना कि अधिकारों का। यह हमारा पूरा पढ़ लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 80 इसी पैसेज से संबंधित है। कौन सा शब्द अन उपसर्ग से नहीं बना है, यहां दिया गया है। तो ये होगा कौन सा, ये होगा विकल्प सी, अनपढ़। अनपढ़, इसमें अन का उपयोग नहीं होता है। ये जो है अन जो है ना, उपसर्ग अन से बनता है। जैसे अन प्लस उपकार, अनुपकार हो गया। अन प्लस उपम, ये हो गया। अन प्लस उपयोगी, अनुपयोगी हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा। और अनपढ़ में ना अन उपसर्ग नहीं होगा, इसमें अन हुआ है। ये देखिए क्या दिया, ये भी ध्यान रखना, इसमें हलंत लगाया गया है। यहाँ आप देखो अच्छे से। यही चीज मैं वो 10 टेस्ट में करवाया, छोटा छोटा सी चीज पहचानना। ये अनपढ़ है ना, अन प्लस पढ़, इसमें हलंत नहीं लगेगा, इसीलिए अन उपसर्ग से नहीं बना है। ये वाला अन, इसमें सिर्फ अन होगा। मनुष्य सब तभी सुखी कहा जा सकता है जब, किस संदर्भ में, उसे आत्मिक ज्ञान हो। सुख साधन का विग्रह और समास क्या होगा, तो इसका हो जाएगा जैसे सुख के साधन, ये तत्पुरुष समास हो जाएगा। सुख के साधन तत्पुरुष समास। ठीक। टेस्टिमोनियल का हिंदी, टेस्टिमोनियल का बताइए आप लोग, अनुवाद क्या होगा। प्रशंसा पत्र होगा, विकल्प बी। अपने कार्यालय से अनुभव प्रमाण पत्र लेने के लिए किसे आवेदन पत्र लिखेंगे, विकल्प बी, व्यवस्थापक महोदय को लिखना होता है। कान का कच्चा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ होता है कि बिना सोचे किसी बात पर विश्वास कर लेना, सुनी सुनाई बात पर विश्वास करना, विकल्प बी। आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, इस लोकोक्ति का सही अर्थ बताना आपने। तो इसका होता है कि वांछित कार्य को छोड़कर अन्य कार्य में लग जाना, जो कार्य आप कर रहे हो उसको छोड़ के फिर दूसरा में तीसरा में लग जाना, इसी को कहते हैं आए थे हरि भजन को ओटन लगे कपास। विकल्प बी सही जवाब हो गया इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंदर अंदर कराही में गुड़ पगना का अर्थ क्या होगा। इसका मतलब होता है कि गुप्त मंत्र ना होना, विकल्प बी सही जवाब है। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी कसत सुकंग सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लपटे रहत भुजंग, इसमें कौन सा अलंकार है, बताओ आप लोग। मैंने अलंकार के बारे में बहुत डिटेल्स में बताया उस 10 टेस्ट में, आप लोग देखो जा करके, पूरा फुल डिटेल्स में क्वेश्चन एक आया था, कोई अलंकार का पूरा एक सीरीज पूरा चल गया था, लगभग 10 मिनट का एक क्वेश्चन का। तो इसमें ना जो होगा अर्थांतर न्यास अलंकार होगा। ठीक है, कौन सा, अर्थांतर न्यास अलंकार, जहां किसी साधारण बात का विशेष बात से और विशेष बात का साधारण बात से समर्थन किया जाए, तो वहां पर यह अलंकार होता है। कौन सा, अर्थांतर न्यास अलंकार। काजल की रेख सी कतार है खजूर की, इस पंक्ति में अर्थ अलंकार का कौन सा भेद झलकता है। अब बताइए, अर्थ अलंकार के बारे में जान लिए, इसका कितना भेद होता है इसके बारे में भी आपको पता होना चाहिए, तभी पता होगा ना जब आप लोग वीडियो देखोगे जाकर के वो वाला। तो राइट आंसर होगा उपमा अलंकार होता है। कौन सा, उपमा अलंकार होगा। क्लियर। सो सुख सुजत सुलभ मोहि स्वामी में कौन सा अलंकार है, इसमें हो जाएगा वेरी इजी, अनुप्रास अलंकार, क्योंकि समान वर्ण का दो से अधिक बार आवृत्ति होता है तो अनुप्रास अलंकार होता है, वेरी इजी। राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उरावन हारी, इसमें कौन सा छंद पूछा जा रहा है, बताओ आप, इसमें कौन सा छंद होगा। तो यह सम्मात्रिक छंद होना चाहिए। इसमें कौन सा, सम्मात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होता है, प्रत्येक चरण में कितने 16 मात्राएं होती है, और कुल छंद 64 मात्रा की होती है। कितना, टोटल 64 मात्राएं इसमें होती है। तो ये एक चौपाई है, राम कथा सुंदर करतारी संशय विहग उरावन हारी। ठीक, तो इसी से संबंधित अगर दूसरा पूछ दिया जाए, जो कि अभी ट्रेंडिंग में रील्स में आप लोग देख रहे होंगे, मंगल भवर अमंगल हारी द्रवहु सुदशरथ अजर बिहारी, ये भी
इसी का होगा, ये चौपाई है। कौन सा छंद है? ये चौपाई है। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा करिकै करुणा निधि रोए में कौन सा रस है? सही जवाब है विकल्प सी, करुण रस है। ठीक है, इसमें भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा की दशा देखकर अपने आंसू बहा रहे हैं, जहां नायक और नायिका के विरह यानी बिछड़ने का वर्णन ही इसका वियोग श्रृंगार कहा जाता है। ठीक है, वियोग श्रृंगार है। रस है करुण रस, श्रृंगार पूछा जाता तो वियोग श्रृंगार होता है इसमें। आलंबन और उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न भावों को बाहर प्रकाशित करने वाले कार्य क्या कहलाते हैं? तो इनको कहा जाता है अनुभाव। चलिए क्वेश्चन नंबर 94, बाघ और बकरी एक घाट पानी पीती, इसमें शुद्ध क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध बाघ हो जाएगा दूसरा, बाघ और बकरी एक घाट पर पानी पीते हैं। मिश्र वाक्य पहचानना है, हो जाएगा उसके पास जो कुछ था वो खो गया। ठीक, रचना के आधार पर वाक्य तीन भेद कौन कौन से? साधारण वाक्य, ठीक, मिश्र वाक्य और संयुक्त वाक्य, ये तीन भेद होते हैं। ठीक, ध्यान रखना आपको। नीली कमीज वाले छात्र को यह कलम दे दो, रचना के आधार पर वाक्य का सही भेद पहचानिए। तो इसका राइट आंसर सरल वाक्य है यह, क्योंकि ये रचना के आधार पर जो एक उद्देश्य होता है कि एक विधेय भी होता है, और रचना की वाक्य की सटीक पहचान है कि इसमें मात्र एक ही मुख्य क्रिया होगी, और यहां पर दे दो, ये दे दो जो लिखा गया है ना, दे दो, ये मुख्य क्रिया है, यही मेन वर्क है। तो ये सरल वाक्य का एग्जाम्पल है। कतर व्योत में कौन सा समास है? कतर व्योत में हो जाएगा द्वंद्व समास। ठीक है, कौन सा? द्वंद्व समास होगा। द्वंद्व समास में क्या होता है? सभी पद होगा प्रधान। द्वंद्व समास में, द्वंद्व समास के कितने भेद? तीन भेद। कौन कौन से? पहला तो इतरेत्तर द्वंद्व, इतरेत्तर द्वंद्व। दूसरा क्या होगा? समाहार द्वंद्व। ठीक, तीसरा होगा वैकल्पिक द्वंद्व। अब बोलोगे कि सर इतरेत्तर द्वंद्व क्या होता है, समाधार द्वंद्व क्या होता है, वैकल्पिक द्वंद्व क्या होता है? तो इतना डिटेल्स में बताऊंगा ना, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूं, अभी भी रिपीट करूंगा। यही सारी चीज ना 10 टेस्ट में बताया है। अगर ये बताया है तो इसके बारे में बताया, इसके एग्जाम्पल भी बताया मैंने। जहां जहां क्वेश्चन आया है सारा टॉपिक ही क्लियर कर दिया हूं 10 टेस्ट में। आप बीती में समास कौन सा है? आप बीती में कौन सा समास होगा? तो इसमें होना चाहिए अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष समास। अब बोलोगे तत्पुरुष समास तो सुना है, अधिकरण क्या हो गया? तो ये तत्पुरुष समास का पार्ट हो गया, विभेद हो गया। एक विभेद होता है अधिकरण तत्पुरुष समास। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? कर्म तत्पुरुष, कर्म तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ये जो आप बीती है ना, कौन सा है? अधिकरण तत्पुरुष समास का एग्जाम्पल होगा, इसीलिए ऑप्शन ई राइट आंसर होगा। कोई दिया ही नहीं गया यहाँ पर राइट आंसर, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। धीरे धीरे का समास क्या होगा? तो धीरे धीरे जो है अव्ययी भाव समास। ठीक है, जिस समास का पहला पद प्रधान होगा तो वो उसका अव्ययी हो और दूसरा पद संज्ञा हो, तो उसको अव्ययी भाव समास कहते हैं, पता है आपको। चलिए आज का आखिरी प्रश्न, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द पूछा जाता है, इसके लिए क्या होगा? क्या होगा? अध्युढ़ होगा, अध्युढ़। और जो स्त्री जिसे पति ने त्याग दिया उसको क्या कहते हैं? जिसको पति ने त्याग किया हो, पति त्याग दिया हो, उसको कहेंगे परित्यक्ता। अनूढ़ा किसको कहेंगे? वह स्त्री जिसका विवाह ना हुआ हो, विवाह ना हुआ हो, उसको कहेंगे अनूढ़ा। क्लियर है? तो चलिए सभी प्रश्नों को हम लोगों ने कर लिया। आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में किसी एक ग्रुप में शेयर कर लो। और एक जानकारी मैं आपको दे दूं कि बीपीएससी एडीओ के लिए यहां पर मैं पूरा डिटेल्स दे देता हूं। आज पहला पेपर का 10 टेस्ट होगा किरण का, ठीक है, और अभी चल रहा, आज चौथा टेस्ट है। दूसरा पेपर जो सामान्य अध्ययन का है 10 किरण का हुआ है, 10 यूथ का हुआ है, और अभी 10 टेस्ट करवा रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूरा 2025 को शामिल करके उसका एक टेस्ट हो गया है। ये टेस्ट ना आप लोग जाकर करो,
जाकर के। ये लेटेस्ट टेस्ट है। तीसरा पेपर का 5 सेट इसमें भी हो चुका है, जो मैथ रीजनिंग का है। ये एडीओ का पूरा सीरीज है। जो बच्चे दरोगा की तैयारी कर रहे हैं तो बिहार दरोगा के लिए भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज करवाया जा रहा है। और अभी एक एजुटेरिया का खाकी सीरीज चल रहा है, खाकी सीरीज जो 3.0 आया है तीसरा, इसका 2 टेस्ट हो चुका है, तीसरा टेस्ट होने वाला है। ठीक है, वो टेस्ट जैसे ही आएगा वो भी अपलोड कर दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग सब्सक्राइब कर लिए हो तो कोई बात नहीं, जो नहीं किए सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।